Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from today's Hindu newspaper as well as Indian Express. So let's start with the news analysis for today, and today's date is very special, which is 26th of November. The year is 2024, but the more important year or the year which changed the history of India or which which brought us to a new direction was the date of 26th November, and the year was 1949, and it is to commemorate this particular date only that every year we celebrate on 26th November the Constitution Day of India. And we commemorate this day because it is on this particular date that we enacted and adopted our constitution. Okay, although it came into force obviously on 26th of January 1950, but our constitution was complete on this particular date. And interestingly, our Indian constitution is the longest constitution of the world. सबसे लंबा constitution है लिखा हुआ, longest written constitution, and also it took around 2 years, 11 months and 18 days to finalize the words of the constitution. So these are some important facts which would always be important for us irrespective of whether our paper has already been framed or not, because these are some details which are not going to change either for this exam or for any other examination. So yes, our Indian constitution is the longest written constitution of the world, and it took around 2 years, 11 months, 18 days. So it took around 3 years to properly draft our particular constitution. And the person who is known as the father of Indian constitution was the chairman of drafting committee, and it was Dr. B.R. Ambedkar. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कई लोग. Okay, and this year is special because we are making the 75th year of the constitution formation. 75 years complete हो चुके हैं 1949 से आज 2024 में काउंट करते हुए, आपके जब से कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्रिएट करा है. You should know this कि हम हमेशा से इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं कॉल करते थे, बिकॉज आपने कॉन्स्टिट्यूशन डे, गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है फ्रॉम 26 ऑफ नवंबर 2015. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए when did we had our first Constitution Day celebration, so it would be first Constitution Day would be on 26th of November 2015. Okay, and फिर उसके बाद से every year we have been having this particular Constitution Day celebration. इसके अलावा if you are a lawyer you must know this that Bar Council of India, जो lawyers को regulate करने वाली authority Bar Council of India, ये कई सालों से आपका इस particular day को as National Law Day, नेशनल लॉ डे की तरह सेलिब्रेट करती आई है. सो आपका जो संविधान दिवस है या फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इसको आप लॉ डे भी बोल सकते हैं, नेशनल लॉ डे. इसके अलावा यू कैन कॉल इट द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस ऑल्सो. नथिंग वुड बी रॉन्ग, सब सही ही लिखा हुआ है. संविधान दिवस इज ऑल्सो करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑल्सो करेक्ट एंड नेशनल लॉ डे इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये आपका आज का हो गया. इसके अलावा यहाँ पे प्रेसिडेंट टू एड्रेस पार्लियामेंट टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता है, नॉट नया सेशन बट जब भी कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म आती है या साल का जब पहला नया सेशन होता है, उस टाइम में प्रेसिडेंट एड्रेस करती है. इसी तरीके से कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जैसे कि यहाँ पे एक कोई स्पेशल ओकेजन है, लाइक 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुए हैं, तो यहां पे हम एक स्पेशल सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर में भी एक जॉइंट एड्रेस टू पार्लियामेंट होगा. सो यू शुड नो दिस कि आपके जो प्रेसिडेंट है या आपके जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन कब कब कैसे कैसे होते हैं. तो दो प्रोविजन तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो है आर्टिकल 87 और एक प्रोविजन है आपका आर्टिकल 118. ये दो आर्टिकल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में. पहला 87 है और दूसरा 118. तो आर्टिकल 87 तो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को स्पेशल एड्रेस देना है तो वो दे सकते हैं, या उनको देना ही चाहिए. आई वुड से उनको प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देते हैं दो ओकेजन्स पे, विच इज आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, यानी जब भी आपकी नई लोकसभा बन के आती है तो उस टाइम पे आपका एक प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, और दूसरा होता है एवरी सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर. तो जो आपका फर्स्ट सेशन होता है हर साल का, उस पे भी आपका इस तरीके से एक भाषण एक्सेट्रा होना चाहिए.
ठीक है, तो 2 जगह। तो रिमेंबर अभी तक स्पेशल सेशन के लिए हमें कहीं पे भी कुछ परमिशन नहीं मिली है। आर्टिकल 118 स्पेसिफिकली बात करता है उन सिचुएशंस की, आई एम नॉट श्योर 108 भी हो सकता है, प्लीज क्रॉस चेक कर लेना आप भी, बट आर्टिकल 118 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके अंदर में ये कहा हुआ है कि अगर कहीं पे कोई बिल में डेडलॉक है, कोई पर्टिकुलर ऐसा बिल है जो आपका लोकसभा या राज्यसभा से पास नहीं होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आप ज्वाइंट सेशन को कॉल कर सकते हो। और अगर डेडलॉक है और उसको आपको अगर काउंटर करना है, लेट्स से लोकसभा से पास हो रहा है, राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, या राज्यसभा से पास हो रहा है, लोकसभा से नहीं पास हो रहा, तो उस सिचुएशन के अंदर में आपका प्रेसिडेंट जो है वो एक ज्वाइंट सेशन कॉल कर सकता है, ज्वाइंट सेशन कॉल कर सकता है। और यहां पे लोकसभा और राज्यसभा के लोग जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब एक साथ बैठेंगे और फिर वो उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर में वोटिंग करेंगे। अगर वो वहां पास हो जाता है तो वो बिल पास माना जाएगा, अदरवाइज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिमेंबर, दोनों ही सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन का कॉल लेता है, इट इज बेसिकली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ओनली। कैबिनेट जब एडवाइस करता है उसी बेसिस पे करा जाता है आपका ये ज्वाइंट सेशन। तो ये 2 प्रोविजन तो इस तरीके से हो गए। अगेन अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि अगर स्पेशल सेशन करना हो, ज्वाइंट सेशन करना हो, तो उसकी पावर कहां से, तो वो पावर्स आपकी आती हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर, नॉट सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसके अंदर में स्पेशल सेशन के लिए प्रोविजन प्रोवाइडेड है। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर प्रोविजन प्रेसिडेंट का तभी कॉल हो सकता है जब लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन, जो भी उनके प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो एग्री करते हैं। उस सिचुएशन के अंदर में आप एक ज्वाइंट सेशन उसमें कॉल कर सकते हो। इसके अलावा देयर आर सर्टेन पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस आल्सो, मतलब इट्स अ कस्टमरी प्रैक्टिस। इसके अंदर में तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कहीं पे कुछ लॉ शो करने की। अगर पार्लियामेंट में ऐसा कन्वेंशन चलता आता है कि अगर प्रेसिडेंट सिंपल नोटिस भेज के अगर यहां पे पार्लियामेंट को बुलाना चाहे तो सिचुएशन बुला सकती है, तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन तो आपको उसमें आपको कोई रूल्स का जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस होती है तो उसको फॉलो किया जा सकता है। तो 4 सोर्सेज हैं जहां से आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो होता है किसी भी पार्लियामेंट का, उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट टू मार्क 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। आफ्टर क्लाइमेट टॉक्स नेशंस गेदर टू आयरन आउट अ ट्रीटी टू कर्ब प्लास्टिक। सो अगेन आई एम अगेन मेकिंग दिस पॉइंट कि हम वही न्यूज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस क्लास के अंदर में जो इस साल के आपके अटेम्प्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन ये न्यूज भी है जो हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अगेन सो इट्स अ रिवीजन कि क्लाइमेट टॉक्स कंप्लीट हो ही हैं, अभी आपके COP29 में वो कंप्लीट ही हुआ है। ऑल्दो सम calling it as a success, some are calling it as a failure, simply because कि यहाँ पे it was being called as a financial COP, finance की COP बोला जा रहा था, because here the main agenda was कि हमें यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज और जो आपकी लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जो क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज है बहुत ज्यादा और जिनके पास में कुछ भी पैसा नहीं, कम पैसा है उनके पास क्लाइमेट पे खर्च करने के लिए, उनको डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू फंड्स मिलने चाहिए, फाइनेंस मिलने चाहिए। और यहाँ पे हम एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल डिसाइड करना चाहते थे एंड वी वांटेड कि इसकी वैल्यूएशन जो है वो होनी चाहिए करीब करीब $1 ट्रिलियन पर एनम, यानी करीब करीब डेवलप कंट्रीज को देने चाहिए हमें $1 ट्रिलियन सो दैट हम क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज के अंदर में इन्वेस्ट कर सकें, हम क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाउएवर यहाँ पे $1 ट्रिलियन तो कहीं नहीं मिल रहा है, उसका आधा भी नहीं मिला है, उसका 1/3 आपको मिला है, मतलब करीब करीब $300 बिलियन की यहाँ पे जो $300 बिलियन की जो फाइनेंस है वो यहाँ पे आपकी एक्सेप्ट कर दी गई है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली एट द सेम टाइम चाइना, इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज को काउंटर कर रहे हैं कि दिस इज नॉट एट ऑल इनफ, $300 बिलियन से कुछ नहीं होगा। मोर ओवर यहाँ पे हमें $1 ट्रिलियन वाज द मिनिमम विच वी वर आस्किंग कि इतना तो गवर्नमेंट, इतना तो डेवलप कंट्रीज को देना ही पड़ेगा। बट स्टिल COP29 को एटलीस्ट जो उनका इस बार के प्रेसिडेंट है आपके या उनके जो होस्ट कंट्री है अजरबैजान, उसको सक्सेस कह रहे हैं कि एज कंपेयर टू $100 बिलियन का जो गोल था जो 25 में एंड हो रहा है, 26 ऑनवर्ड से लेके 35 तक यानी नेक्स्ट 10 ईयर्स तक $300 बिलियन का तो यहाँ पे हमें अश्योरेंस मिल ही चुका है। ऑल्दो द हिस्ट्री हैज बीन कि जो $100 बिलियन का भी आपका गोल था जो 2020 से बिगिन करता था, इट वाज ओनली इन द ईयर 2023 जब आपका वो पर्टिकुलर टारगेट है जो 100 बिलियन तक आपने अचीव किया था। अदरवाइज आपको हर साल $100 बिलियन भी नहीं मिल रहे थे। तो लेट्स सी कि
कि इस बार क्या हमें $300 बिलियन पर एनम मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। तो यहां पे ये तो रही बात आपकी जो COP29 की हुई। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये उससे आगे की बात कर दी, COP29 नहीं, अब ये बात करिए एक प्लास्टिक ट्रीटी की। एंड वी आर अवेयर कि पिछले 2 साल से आपके प्लास्टिक ट्रीटी के लिए कमिटीज बैठे हुए, कमीशन बैठे हुए हैं और वो यहां पे नेगोशिएट कर रहे हैं सो दैट हम एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी यहां पे फाइनलाइज कर सकें, जिसके अंदर में एक हम पर्टिकुलर ईयर डिसाइड कर सके जब तक हम प्लास्टिक को एलिमिनेट करना है। रिमेंबर, वुड को रिप्लेस करने के लिए बिकॉज हम बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे ट्री फैलिंग हो रही थी, टिम्बर बहुत ज्यादा यूज हो रहा था वुड आपके कैरी बैग्स बनाने के लिए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्लास्टिक लाए थे। बट प्लास्टिक अब अपने आप में एक पॉल्यूशन बन चुका है, पॉल्यूटेंट बन चुका है, तो अब हमें उसको भी रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट आ पड़ी है। तो उसके लिए आपका स्टार्ट होता है 2022 से, जब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, आई रिपीट, 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करती है टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो 2022 के अंदर में आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का रेजोल्यूशन है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। एंड यहां पे ये डिसाइड करते हैं कि बाय एंड ऑफ 2024 यानी इस ईयर के एंड तक वी शुड बी एबल टू फाइनलाइज अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ठीक है, 24 के एंड तक हमें एक प्लास्टिक ट्रीटी को फाइनलाइज करना है, जिसके अंदर में हम एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करेंगे रिगार्डिंग द एलिमिनेशन ईयर फॉर योर बेसिकली योर प्लास्टिक। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमने यहां पे करा है। तो अब इसके बेसिस पे जब बिकॉज हमने ये डिसाइड करा था, वी डिसाइडेड कि वी हैव टू स्टार्ट नेगोशिएशन, हमें सारी कंट्रीज को बैठ के डिसाइड करना चाहिए। तो 175 कंट्रीज केम टुगेदर एंड दे बीन हैविंग दीज मीटिंग्स नोन एज INCs। द फुल फॉर्म ऑफ दीज आर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमिटी। ओके, सो INC का फुल फॉर्म आपके यहां दिया हुआ है। तो व्हाट एग्जैक्टली आर INCs? INCs आर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी। एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दीज INCs? तो इन INCs का मेन पर्पस होता है कि बेसिकली जो हम प्लास्टिक ट्रीटी फाइनलाइज करना चाहते हैं उसके जो डिटेल्स होंगी उनको हम यहाँ पे हम नेगोशिएट करें एंड फाइनली एक जो फाइनल ड्राफ्ट ट्रीटी का उस पे हम कुछ डिसीजन ले पाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट आपकी जो INC 1 थी, आपकी पहली INC 1 थी, वो आपने लास्ट ईयर उरुग्वे में करी। इफ यू वांट टू नो द नेम ऑफ द प्लेस, इट इज पुंटे डेल एस्टे। सो दैट इज द नेम ऑफ द प्लेस जहां पे हमने इसकी पहली मीटिंग करी थी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट INC 2 जो थी वो आपकी पेरिस के अंदर में आपने होल्ड करी, पेरिस फ्रांस के अंदर में। फिर आपकी INC 3 होती है जो आपने UNEP के हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर जो नाइरोबी में सिचुएटेड है, वहां पे हमने कंडक्ट करी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है INC 4 जो इसी साल आपने ओटावा कनाडा, ओटावा कनाडा में करी। एंड अभी दिसंबर के अंदर में अब आपकी जो लास्ट INC 5 है, जो फाइनल इसकी INC है, जिसमें हम एक प्रॉपर फाइनल ड्राफ्ट पे डिसाइड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के एक ड्राफ्ट को, उसकी यहां पे मीटिंग स्टार्ट होगी इन बुसान, साउथ कोरिया। ठीक है, सो INC 5 जो है वो आपकी बुसान, साउथ कोरिया में फाइनलाइज होगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि यहां पे हम एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को फाइनलाइज कर पाएंगे। रिमेंबर दिस, जब भी आपकी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी फाइनलाइज हो जाएगी, रिमेंबर जितनी भी ट्रीटीज होती हैं वो लीगली बाइंडिंग होती है ऑन द मेंबर्स। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी भी होगी, दिस वुड बी लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर नेशंस। तो एक जब ऐसी टाइप की ट्रीटी हो जाएगी तो हम फाइनली कुछ प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कर पाएंगे, कुछ ऐसा जो चेंज लाने लायक होगा उस टाइप का हम यहां पे कुछ कर पाएंगे। मोर ओवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, इसलिए इंडिया भी इसमें प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट कर रहा है। नॉट बिकॉज कि इंडिया केयर कर रहा है बहुत एनवायरमेंट की या प्लास्टिक पॉल्यूशन के अगेंस्ट में, बट बिकॉज इंडिया यहां पे प्लास्टिक प्रोडक्शन के अंदर में बहुत बड़ा प्लेयर है एंड इट इज नॉट अ गुड रैंकिंग फॉर अस, बट इंडिया फर्स्ट आता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वेस्ट। ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट में इंडिया का जो है नंबर 1 प्लेस है।
इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना, बट वहां पे ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बेटर है, तो उसका जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है वो इतना जनरेशन ज्यादा है, बट वो बिकॉज वहां पे उसको प्रोसेस भी कर रहा है, उसके अंदर में उसकी क्लीनिंग भी कर रहा है, इस वजह से वो नंबर 1 नहीं आता है। जब प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन की बात आती है वो 4th या 5th नंबर पे आता है और इंडिया आपके टॉप नंबर पे आता है। तो इसलिए इंडिया का भी ट्रीटी से बहुत ज्यादा लेना देना रहेगा, बिकॉज यहीं से डिसाइड होगा कि इंडिया को नेक्स्ट 4-5 साल के अंदर में किस तरीके से प्लास्टिक को के प्रोडक्शन को कैसे कर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करता है। सेक्युलर सोशलिस्ट आर एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टे इन प्रियम्बल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जो एक रिट पेटिशन से निकल के आया है, रिट पेटिशन से निकल के आया है, विच वॉज फाइल्ड इन द ईयर 2020। ठीक है, और ये रिट पेटिशन ये आर्ग्यू करती है कि आपके प्रियम्बल के अंदर में 2 वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स। तो इफ यू हैव गॉन थ्रू द प्रियम्बल यू वुड नो कि हम नेचर ऑफ पॉलिटी कैसे बनाना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। So this is the kind of nature of polity which India wants to create। और यहाँ पे the petitioner has argued कि जो 2 particular words हैं socialist और secular, ये original part नहीं थे preamble के। Moreover, they have also countered it। They have stated that आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा है उसने इन वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करा था, एंड आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग डिस्कशन उसके बाद दे डिसाइडेड दैट इन प्रियम्बल वी शुड नॉट इनकॉर्पोरेट दिस वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, बिकॉज इनका जो मीनिंग है वो इंडिया के हिसाब से अप्लाई नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया था। बट फिर आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने इन 2 वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करा। मोरओवर ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट था ये इमरजेंसी के टाइम में आया था, जिसने प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, प्रोसीजर्स वर नॉट फॉलोड टू इनकॉर्पोरेट दीज वर्ड्स, तो इस वजह से भी ये पर्टिकुलर जो वर्ड्स है इनको इनग्रेंड नहीं करना चाहिए, इनको रिमूव करने का ऑर्डर पास करना चाहिए। तो यहां पे जो भी इनके आर्ग्यूमेंट्स थे वो सारे आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करे। इन्होंने पेटिशनर से जो बेसिकली उनसे कुछ रिप्लाई भी नहीं मांगा, रिस्पोंडेंट्स आपके जो गवर्नमेंट थे उनसे कुछ रिप्लाई भी नहीं मांगा, यहां पे सीधे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट अनमेंटेनेबल यहां पे डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज दे सेड कि ये पर्टिकुलर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दे फॉल ऑन फेस ऑफ इट, ये बिल्कुल फेस पे फॉल करते हैं, सिंपली बिकॉज कि एक चीज तो उन्होंने बोला कि आपके जो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर यूज करे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उनका मीनिंग बहुत डिफरेंट है जो इनका वेस्टर्न कंसेप्ट है, जो इनका एक जनरली एक्सेप्टेड कंसेप्ट है। तो यहां पे पहले हम सोशलिस्ट वर्ड को समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि सोशलिस्ट वर्ड जो आपका प्रियम्बल में शो करता है ये किसी एक इकोनॉमिक सिस्टम की बात नहीं करता है। इट इज नॉट स्टेटिंग कि आपकी जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है वो लेफ्ट आइडियोलॉजी राइट आइडियोलॉजी में होना चाहिए। यहां पे सोशलिस्ट वर्ड का मतलब है कि जो इंडियन स्टेट है इट शुड बी अ वेलफेयर स्टेट, इट शुड बी अ वेलफेयर स्टेट, और सोशल फील्ड के अंदर में, इकोनॉमिक फील्ड के अंदर में और पॉलिटिकल फील्ड के अंदर में देयर शुड बी इक्वालिटी। ओके, सो आपके सुप्रीम कोर्ट ने इसका मीनिंग क्या अंडरस्टैंड कराया है कि सोशलिज्म वर्ड या सोशलिस्ट स्टेट जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका मतलब कोई इकोनॉमिक सिस्टम से नहीं है उस टाइम के या आज के टाइम से, ये किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं प्रमोट करता है। इट ओनली वांट्स दैट इंडिया शुड बी अ वेलफेयर स्टेट, और इंडिया के अंदर में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके बीच में देयर शुड बी सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन का भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि हम एक जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या इक्वालिटी हम यहां पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, विच शुड बी सोशल इन सेंस, इकोनॉमिकल इन सेंस एंड पॉलिटिकल इन सेंस। तो यहां पे सोशलिस्ट वर्ड का मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। दूसरा वर्ड आता है सेक्युलर। तो यहां पे रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट की आपका सेक्युलर का डिस्कशन उस टाइम में भी हुआ था और फिर फाइनली दे डिसाइडेड कि सेक्युलर वर्ड हम यहां पे इंकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। उसको भी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर करते हुए बोला कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। मोर ओवर उस टाइम में जब ये डिबेट चल रहा था
द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सेक्युलर वर्ड का जो मीनिंग होता था इट वाज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड कि एक्चुअल में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, बिकॉज एट दैट टाइम सेक्युलरिज्म ओनली मेंट देयर शुड नॉट बी एनी प्रैक्टिस और एनी अलाउंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीजन। सेक्युलरिज्म का बिल्कुल अपोजिट हो जाता सिंपली एथिज्म, कि आप किसी भी रिलीजन के अंदर में नहीं मानते हो, जो यूजुअली एक पर्टिकुलर नेचर होता है कम्युनिस्ट स्टेट का। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्युलरिज्म वर्ड जो आपके प्रीएम्बल में यूज है या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप फॉलो करते हो, वो सेक्युलरिज्म वर्ड जो है, सेक्युलरिज्म कंसेप्ट है, वो बेसिकली बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन्स, ऑफ ऑल रिलीजन। सो यहां पे जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ये बात कर रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन, नथिंग एल्स। यानी कि यहां पे इट इज नॉट स्टेटिंग कि अगर आप सेक्युलर स्टेट इंडिया को डिक्लेयर करते हो तो यहां पे कोई भी रिलीजन आप फॉलो नहीं कर सकते हो। इन द रिवर्स, उसके उल्टे में यहां पे सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन एज वेल एज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रिलीजन। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगेंस्ट अ रिलीजन, और इसको आप आगे बढ़ा के भी कह सकते हो कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल फॉलोइंग डिफरेंट फेथ्स। यानी कि रिलीजन के बीच में भी मैं कोई यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, और जो लोग डिफरेंट रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उनके बीच में भी, पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, उनसे भी मैं कोई भी यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। और ये जो चीज है पर्टिकुलरली आर्टिकल 14, 15, 16 यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कोट करे कि 14, 15, 16 है जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा, और ये चीज वो एश्योर करते हैं कि यहां पे इंडिया के अंदर में सारे रिलीजन्स को इक्वल यहां पे रेस्पेक्ट मिल रही है। मोर ओवर देयर इज नो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ये भी यहां पे एश्योर किया जा रहा है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रह सकते हैं, और सेक्युलरिज्म को यहां पे फिर से सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को फिर से यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया है, विच मींस दीज आर सर्टेन प्रोविजंस जो आपकी पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकते। मोर ओवर देयर वाज अनदर आर्गुमेंट कि यहां पे जो 42nd से इन्होंने अमेंडमेंट करा है, दे कुड नॉट डू सो बिकॉज ये एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होता है। जब आप प्रीएम्बल को रीड करते हो तो आपने जब ये सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिया, उसमें डेट जो आज की ही डेट है 26 नवंबर 1949 प्रोवाइडेड है। तो यहां से इसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं प्रीएम्बल को, तो इट गिव्स अस अ सेंस कि ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, जो प्रीएम्बल जब उन्होंने ड्राफ्ट किया था 1949 में, एट दैट टाइम दे हैड इनकॉर्पोरेटेड सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म, कि यहां से हम कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर सेंस आपके उस टाइम से ला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, ये रेट्रोस्पेक्टिवली होता है या नहीं होता। यहां पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी आपका 1949 में डिसाइड हुआ, क्या 76 में मैं क्या आपके प्रीएम्बल की या मैं अपने प्रोविजंस की लैंग्वेज का चेंज नहीं कर सकता हूं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली आंसर करा कि यस, पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास में अमेंडमेंट की पावर होती है। तो यहां पे अगर उन्होंने सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड को ऐड करा है प्रीएम्बल के अंदर में, तो ये उनके पावर में है। आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसको अमेंडमेंट की पावर प्रोवाइड करता है, एंड इट वाज विद इन द रीच ऑफ द पार्लियामेंट टू basically amend the preamble also, because preamble is also part of the constitution। केशवानंद भारती केसेस में बोला गया था। तो because preamble is part of the constitution और preamble आपके constitution को amend करने का प्रोसीजर आर्टिकल 368 में, तो आपकी पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का प्रोसीजर यूज करके preamble के अंदर में भी चेंजेस कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को एक और तरीके से काउंटर करा कि जब आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, it was drafted by a government which was not the same government जो इमरजेंसी के टाइम थी। बेसिकली आपकी अपोजिशन पार्टीज की ही यहाँ पे गवर्नमेंट थी। They also had the opportunity to remove these particular words जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चेंज हुए थे, और पार्लियामेंट के पास में उस टाइम में पावर थी। तो बट स्टिल जो उस टाइम की पार्लियामेंट थी उसने डिसाइड करा अगेंस्ट रिमूविंग दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे चेंजेस जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए थे उनको यहाँ पे रिवर्स किया था, बट दे डिड नॉट रिवर्स दीज पर्टिकुलर चेंजेस, which means कि उस टाइम तक पार्लियामेंट को ये सेंस समझ में आ चुका था कि यहां पे सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर पे, एंड अकॉर्डिंगली दे डिसाइडेड नॉट टू अमेंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ओके, तो ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया। रिमेंबर, ऑल्दो जजमेंट आपका बात का होगा, बट जो डिस्कशन हमने करा है दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जाम ऑल्सो।
Amid chaos over Adani Row, both houses adjourned. So यहाँ पे अभी आपका एक जो सेशन है आपका पार्लियामेंट का, वो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है. सो यू शुड नो कि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कौन कौन से सेशन करने कब कब आपको करने. आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि आपके पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. पार्लियामेंट के 2 जो सेशंस होते हैं उनके बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अब मिनिमम ऑफ 2 सेशंस आर रिक्वायर्ड. इतना ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. वो नहीं कहता कि आपको 4 करने, 6 करने, 10 करने, क्या करना है. वो सिंपली इतना कहता है कि पार्लियामेंट के जो सेशन है उनके 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं चाहिए. विच मीन्स एवरी 6 मंथ एक सेशन हो जाना चाहिए. यानी कि अगर आपके अगर पार्लियामेंट में 2 सेशन साल के हो रहे हैं तो इट इज इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर आपकी जो पार्लियामेंट है वो उससे ज्यादा ही करती है. 3 आपके सेशन तो फिक्स ही है. उसके बाद अगर कोई स्पेशल सेशन, एक्स्ट्रा सेशन, लॉन्गर सेशन कुछ करना हो, कुछ भी, तो वो करा जा सकता है. बट आपके 3 सेशन होते हैं विच स्टार्ट्स विद द बजट सेशन, जो यूजुअली आपका फरवरी के अराउंड, जनवरी 28, 25, 30 कोई भी डेट हो सकती है. यूजुअली डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली. और यहाँ पे आपका बजट सेशन होता है उस पर्टिकुलर मंथ्स में. फिर उसके बाद सेकंड सेशन होता है आपका जो जून में स्टार्ट होता है. इट इज योर मॉनसून सेशन. ठीक है. सो जून, जुलाई, अगस्त के आसपास आपका ये सेशन होता है. फिक्स मंथ्स नहीं होते हैं. इट इज ओनली अ प्रोस्पेक्टिव डेट. आसपास की ही कोई डेट रहती है इनमें. तो बजट सेशन इन द फर्स्ट सेशन, फिर आपका मॉनसून सेशन होता है 3-4 महीने गैप में, और फिर 3-4 महीने के गैप में आपका विंटर सेशन होता है जो यूजुअली आपके अभी से स्टार्ट हो जाता है. जैसे जो विंटर सेशन है आपका ये कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपके यूजुअली ये 3 सेशंस होते हैं. तो यहाँ पे अमिड केओस ओवर अडानी रो, बोथ हाउस एडजर्न. तो आपके लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं. दोनों ही हाउसेज के अंदर में अभी अडानी इश्यू चल रहा था, तो उसके लिए लोकसभा में भी अपोजिशन लीडर्स ने और राज्यसभा में भी अपोजिशन लीडर्स ने नोटिस सेंड किया. रिमेंबर, आपको अगर कोई भी डिस्कशन करना है, आपको मतलब एमपीज को अगर या एमएलएस को अगर कोई डिस्कशन करना है, तो उनको उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर पे नोटिसेस ड्राफ्ट करके सेंड करने होते हैं टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. विच मीन्स कि लोकसभा में स्पीकर को भेजोगे, राज्यसभा में चेयरमैन को भेजोगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगेन स्पीकर को भेजोगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगेन आप चेयरमैन को यहाँ पे ये पर्टिकुलर नोटिस भेजोगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि हम इस पर्टिकुलर लेट्स से अडानी इशू पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ये नोटिस एक्सेप्ट करे जाए. ये नोटिस अगेन लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली भेजा जाता है. रूल 267 है जो बेसिकली आपको इससे डील करता है नोटिस से. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नोटिस सेंड किए जाते हैं. अब यहां पे जो नोटिसेस आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिसीव हुए हैं, इनका फाइनल डिसीजन होता है. इट इज देयर फाइनल डिसीजन. इसके बाद इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता. इट इज देयर फाइनल डिसीजन कि उन नोटिस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, और एक्सेप्ट करना है तो क्या उन पे कोई डिस्कशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए. और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में दोनों ही हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, लोकसभा और राज्यसभा में, उन्होंने इस पर्टिकुलर नोटिसेस को रिजेक्ट कर दिया. दे सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस नोटिसेस बिकॉज द टाइम इज नॉट राइट टू हैव दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. तो यहां पे उन्होंने उसको वो कर दिया, और उसके बाद हाउसेस को एडजर्न कर दिया गया. तो हाउस एडजर्नमेंट क्या होता है? सो हाउस एडजर्नमेंट 2 टाइप से हो सकता है. एक तो सिंपल नॉर्मल सिंप्लिसिटर हो जाता है आपका हाउस एडजर्नमेंट, और एक होता है एडजर्नमेंट साइन बाय. एडजर्नमेंट इज बेसिकली जो आपके हाउस की प्रोसीडिंग्स है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड या डे. अगर कोई पर्टिकुलर टाइम बताया गया है तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सस्पेंड हो जाती है. विच मींस अब वापस से हाउस रिकॉन्स्टिट्यूट होगा द नेक्स्ट डे और वॉट एवर नेक्स्ट डे हैज बीन टोल्ड. अगर आपका हाउस एडजर्न किया जाता है विदाउट टेलिंग द डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में हम इसे बोलते हैं हाउस एडजर्नमेंट साइंड है. यानी कि हमारी जो रीअसेंबली होगी नेक्स्ट, वो कब होगी, अगर वो बताए बिना ही आपका हाउस एडजर्न हो जाता है, उस हाउस एडजर्नमेंट साइंड है कहा जाता है. और अगर बता के किया जाता है कि वापस से हाउस की मीटिंग कब होगी, तो उसे हाउस एडजर्नमेंट कहा जाता है. तो ये पर्टिकुलर चीज आपके इस केस में हुई है. अगेन इफ यू विल लुक एट दिस पर्टिकुलर इन्फो, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग जो हमें इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दीज सेशंस, दीज लोकसभा, राज्यसभा, नोटिस एक्सेट्रा की किस तरह का प्रोसीजर होता है, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड आई एम श्योर एटलीस्ट क्लैट स्टूडेंट ने पॉलिटी की क्लासेस में इन सबको अच्छे से डिस्कस करा होगा. ओके, तो ये था न्यूज रिगार्डिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा. नेक्स्ट पे आते हैं. बलवंत राजोआना मर्सी प्ली, सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स केस बाय 4 वीक्स. तो यहां पे एक इश्यू आया मर्सी प्ली का. सो अगेन आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स की बात करता है, टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट.
प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स की बात करता है आर्टिकल 72। और यहां पे एक ये पर्सन है बलवंत राजोआना। बलवंत राजोआना इज अ पर्सन जिनको कोर्ट ने, आपके ट्रायल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स ने कन्विक्ट करा है फॉर मर्डर ऑफ लेट सीएम बेंट सिंह। पंजाब के सीएम थे, इनके असैसिनेशन में, इनके मर्डर के केस में इनको कन्विक्ट करा जा चुका है, मतलब ही हैज बीन हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ सीएम बेंट सिंह। तो इन्होंने जो मर्डर किया था उसके बाद इन पे केस चला, उसके बाद कोर्ट में इनको गिल्टी डिक्लेयर करा गया और इनको पनिशमेंट में मिली डेथ पेनल्टी। और ये जो डेथ पेनल्टी है ये हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी को अप्रूव कर दिया। और इसके बाद से ये जेल में थे। अब जेल में थे तो इनको 12 साल पहले इनके पास ऑर्डर आया था डेथ पेनल्टी का। 12 इयर्स अगो इनको डेथ पेनल्टी मिली थी। और उसके बाद यूजुअली जो एक प्रोसीजर होता है विच इज बेसिकली कि यहां पे अब ये पार्डनिंग के लिए, यहां पे ये मर्सी के लिए कि इन पे कुछ दया की जाए, आर्टिकल 72 के अंदर में प्रेसिडेंट को यहां पे आपकी पार्डनिंग के लिए एक अपनी पेटिशन सेंड कर सकते हैं। तो इन्होंने आज से 12 साल पहले पेटिशन, मर्सी पेटिशन फाइल करी थी प्रेसिडेंट को कि भाई प्लीज, आई नो आई हैव बीन गिवन डेथ पेनल्टी एंड आई एम गिल्टी, बट मुझे यहां पे फ्री करा जाए। तो यहां पर जो मर्सी पेटिशन करी गई, कई साल से वो मर्सी पेटिशन प्रेसिडेंट के पास में रखी हुई है। और यहां पे ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, नाउ ही हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पुराने गेने मारू राम करके एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां बोला है कि डेथ पेनल्टी के केस में अगर पार्डन की कोई यहां पे पेटिशन आती है तो उसको एक टाइम लिमिट के अंदर में डिसाइड करना जरूरी है। बिकॉज अगर टाइम लिमिट में नहीं करा जाता है देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ क्रुएल्टी, कि यहां पे अगर मैं टाइम लिमिट, लेट्स से मैंने किसी को डेथ पेनल्टी दी, नाउ दैट पर्सन नोस कि मुझे अब कभी भी डेथ पेनल्टी मिल गई है, कभी भी मुझे यहां पे फांसी पे चढ़ाया जा सकता है। और अगर मैं कई साल तक उसको यहां पे फांसी नहीं देता हूं तो उस सिचुएशन में मैं उस पर्सन के साथ क्रुएलिटी कर रहा हूं, तो इस टाइप की सिचुएशन होती है। तो ऑटोमेटिकली वो डेथ पेनल्टी अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इस टाइप की पेटिशन जाती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में वो पर्टिकुलर जो डेथ पेनल्टी होती है उसे कम्यूट कर दिया जाता है इनटू लाइफ सेंटेंस। कम्यूटेशन क्या होता है? बेसिकली आपने उसका नेचर जो है वो चेंज कर दिया, फ्रॉम डेथ पेनल्टी आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये मतलब होता है कम्यूटेशन का। तो यहां पे इन्होंने भी आर्गुमेंट करा है कि प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर्स हैं इन केस ऑफ यूनियन लॉस, कि अगर यूनियन लॉ के अंदर में कोई पनिशमेंट मिली हो, इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल, इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी। रिमेंबर ये सेम पावर आपके गवर्नर के पास में भी होती है, बट डेथ पेनल्टी के केस के अंदर में पावर गवर्नर के पास नहीं होती, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। तो यहां पे डेथ पेनल्टी के केस में आपके प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं: पार्डन कर देना, कम्यूट कर देना या रेमिशन कर देना। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पावर्स होती है। पार्डन मतलब पूरा ही यहां पे छोड़ दिया, कम्यूटेशन मतलब नेचर चेंज कर दिया, रेमिशन मतलब कि टाइम पीरियड जो है वो यहां पे कम कर दिया है पनिशमेंट का। तो ये 3 उनके पास में पावर होती है। तो यहां पे ही हैज आर्ग्यूड कि बिकॉज मैं पिछले 12 साल से डेथ पेनल्टी रोपे हूं, जिसमें से मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हूं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज बेसिकली व्हेन यू आर आस्क्ड टू लिव अलोन, आपका किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं होता, आपका जो जेल सेल होता है उसमें आप अकेले ही होते हो, आपको बाहर जाने भी नहीं दिया जाने जाता, बहुत कम आपको परमिशंस अलाउड होती हैं। तो पिछले 12 साल से हो, और ये इटसेल्फ अमाउंट्स टू क्रुएल्टी, कि आपको मुझे डेथ पेनल्टी देनी है तो आप डेथ पेनल्टी दीजिए, आप मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हैं, क्रूअल बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। तो यहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे 4 वीक्स का टाइम दिया है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस पर्टिकुलर पेटिशन पे जो भी आपका आंसर है प्लीज प्रोवाइड अ पर्टिकुलर आंसर, कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बिकॉज यहां पे अगर प्रेसिडेंट को भी डिसीजन लेना है, अगेन प्रेसिडेंट यहां पे कैबिनेट की परमिशन से डिसीजन लेता है, अगर उसको डिसीजन लेना है तो 4 वीक्स के बाद उसको बताना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट का यहां पे इस पर्टिकुलर पेटिशन के ऊपर पे क्या उनका ओपिनियन है, या कैबिनेट का इसमें क्या ओपिनियन है, क्या मर्सी पेटिशन है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, रिजेक्ट करनी चाहिए या नहीं। बट अगेन द इंपॉर्टेंट लेसन हियर इज कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर में प्रेसिडेंट को डिसाइड करना होता है, नहीं तो ये क्रुएलिटी का केस बन जाता है और उस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट मर्सी प्ली के अंदर में रिलीफ दे सकता है, इंटरिम रिलीफ दे सकता है, जिसमें वो कम्यूट करी जा सकती है फ्रॉम डेथ पेनल्टी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और एक बार अगर कम्यूटेशन हो जाता है फ्रॉम डेथ पेनल्टी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद आप उसे वापस डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज।
आगे मूव करते हैं, मॉरल स्ट्रेन, अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू विल डीपन इजराइल आइसोलेशन। सो अगेन सेम थिंग जो हम पहले भी कर चुके हैं, यहां पे आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आ जाता है, जो आपका रोम स्टैच्यू से करा था, उसने फाइनली यहां पे अरेस्ट वारंट इशू करे हैं अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल एंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल फॉर देयर वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या फॉर देयर वॉर क्राइम्स इन द स्टेट ऑफ गाजा और पैलेस्टीन। वहां पे इन्होंने जो करे उसके लिए, तो रोम स्टैच्यूट 1998 में जो आपने क्रिमिनल कोर्ट करा है, 1 जुलाई 1, 2002 से ये आपका ऑपरेशनल हो चुका है। फ्रॉम जुलाई 1, 2002 से आपका ये फंक्शनिंग है, यानी जो भी आपके क्राइम्स हुए हैं रिलेटेड टू जीनोसाइड, रिलेटेड टू वॉर क्राइम्स, related to crimes of aggression and related to crimes against humanity, crimes against humanity, तो ये जो 4 केसेस होते हैं, इन पर्टिकुलर केस में अगर आपने कोई ऐसा क्राइम कमिट करा है इस टाइप का, और आपका जो नेशनल जस्टिस सिस्टम है वो आपको पनिशमेंट नहीं देता, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपना जुरिडिक्शन एंटरटेन कर सकता है ऑन द मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज के ऊपर में ये अपना जुरिडिक्शन एंटरटेन कर सकता है। इंटरेस्टिंगली, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट बिकॉज उसने रोम स्टैच्यू को साइन नहीं करा है। पाकिस्तान इज ऑल्सो नॉट अ सिग्नेटरी, यूएस और रशिया आर नॉट अ सिग्नेटरी, चाइना इज नॉट अ सिग्नेटरी, एंड इंटरेस्टिंगली इजराइल, जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करे गए हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ सिग्नेटरी। बट फिर अब इजराइल के अगेंस्ट में कैसे जुरिडिक्शन आ रहा है, एंड द सिंपल आंसर इज कि आईसीसी का जुरिडिक्शन उस पर्टिकुलर केस में भी अप्लाई होता है जब यहां पे इस टाइप के क्राइम्स कमिट करे जा रहे हैं ऑन अ मेंबर कंट्रीज टेरिटरी। और यहां पे इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो पैलेस्टीन है दैट इज अ मेंबर स्टेट, ऑल्दो पैलेस्टीन यूएन मेंबर नहीं है, स्टिल पैलेस्टीन एक आपका मेंबर है आईसीसी का, रोम स्टैट्यूट का। तो अगर पैलेस्टीन की टेरिटरी में विच इनकॉर्पोरेट्स योर गाजा ऑल्सो, गाजा भी इसके अंदर में आएगा, प्लस वेस्ट बैंक इसके अंदर में आता है, बिकॉज ये पर्टिकुलर क्राइम्स, वॉर क्राइम्स जो है आपके कमिट हुए हैं इन द टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में इसका जो जुरिडिक्शन है वो आपके इजराइल के जो पर्सनल है उनके अगेंस्ट में भी इशू होता है। तो यहां पे ऑल्दो द प्रॉब्लम विद आईसीसी इज कि आईसीसी के पास कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, आईसीसी के पास खुद की पुलिस नहीं है। ओनली थिंग ऑन विच दे आर डिपेंडेंट इज कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन जिनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करा गया है, अगर ये किसी मेंबर स्टेट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन विच इज अ मेंबर स्टेट, अगर ये किसी भी मेंबर स्टेट में जाते हैं तो ये उस गवर्नमेंट की या उस पर्टिकुलर कंट्री की ड्यूटी बनती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को द हाग नीदरलैंड्स में जहां आईसीसी का हेडक्वार्टर है वहां पे प्रेजेंट किया जाए, सो दैट उनके अगेंस्ट में एक प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जा सके। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू कैन से कि प्रॉब्लम्स ऑफ नेतन्याहू और गैलेंट, ऑल्दो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अलग चीज चलती हैं, बट विल भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एटलीस्ट जो सपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, वो यहाँ पे डिंडलिंग की तरफ जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। बिकॉज यहाँ पे इस टाइप का जब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेता है, एटलीस्ट मॉरल प्रेशर जो होता है आप इस वॉर को एंड करने का या प्रॉपर एक्शन लेने का, वो जरूर बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये इसका कंटेक्स्ट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, CAQM eases norms for Delhi schools and colleges after Supreme Court order permits hybrid mode। तो आपकी ये पर्टिकुलर बॉडी है known as Commission for Air Quality Management, CAQM, Commission for Air Quality Management, जो आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपने 2021 में CAQM एक्ट के अंदर में क्रिएट करी। CAQM एक्ट के अंदर में आपने इस बॉडी को क्रिएट किया है, और ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली NCR रीजन। दिल्ली NCR रीजन के अंदर में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ये पर्टिकुलर बॉडी आपने यहाँ पे अपॉइंट करी है एयर पॉल्यूशन के लिए। और ये इसके पास बहुत पावरफुल बॉडी, इट्स अ पावरफुल बॉडी, बिकॉज इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, एयर पॉल्यूशन के केस के अंदर में, ये ऑर्डर्स पास कर सकती है, बाइंडिंग ऑर्डर्स पास कर सकती है ऑन द दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज द NCR स्टेट्स ऑल्सो, विच आर बेसिकली योर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान एक्सेट्रा। ये पर्टिकुलर स्टेट्स को ये ऑर्डर पास कर सकती है जो बाइंडिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल it can pass an order for closure of industries in the NCR region of these particular states also। तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली NCR के अंदर में आपने CAQM बॉडी करी है, और यहाँ पे CAQM को एक पर्टिकुलर एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना होता है जिसको हम बोलते हैं GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 4 तक होता है। सो 1 से लेके 4 तक ये GRAP का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आपका यहाँ पे
एक्शन प्लान होता है जो इनको इंप्लीमेंट करना होता है। करंटली बिकॉज पॉल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी में या पुअर कैटेगरी से ऊपर चल रहा है, तो उसमें आपका हाईएस्ट लेवल का ग्रैप लग रहा है। और यहां पे अब दिल्ली स्कूल और कॉलेजेस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है इसको रिड्यूस कर सकते हो, हाइब्रिड मोड के अंदर में आप क्लासेस को अलाउ कर सकते हो। तो यहां पे CAQM को शायद अब ग्रैप 4 से 3 या 2 पे मूव करने का यहां पे ऑथराइजेशन मिल चुका है। सो दिस इज रिगार्डिंग CAQM ग्रैप। नेक्स्ट पे आते हैं, कैबिनेट क्लियर्स पैन 2.0 कार्ड टू फीचर QR कोड। सो अगेन आई वुडंट से कि दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, दिस इज फॉर नेक्स्ट ईयर, कि आपका एक नया प्रोजेक्ट यहां पे अप्रूव किया, डिजिटल प्रोजेक्ट है, विच इज बेसिकली जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है विच आर इशूड बाय योर IT डिपार्टमेंट। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो पर्टिकुलरली पैन कार्ड जिसको हम बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको इशू करता है, जिस बेसिक नंबर के थ्रू आपके पास में भी 18 के बाद आपका पैन कार्ड बन जाएगा, जिस नंबर के थ्रू आपका जो भी टैक्स होता है वो सब यहीं से ही कट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने से मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे पैन 2.0 स्टार्ट करा है, नया एक आपका प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर में जितने भी आपके पैन कार्ड्स हैं उनको अपडेट किया जाएगा विद अ QR कोड। तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ नंबर, बट एक QR कोड भी आपका जनरेट कर दिया जाएगा। सिंपली स्कैनिंग द QR कोड, पैन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी या उस पर्सन से बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो अब पैन कार्ड के थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे। तो यहां पे why we have started a new program PAN 2.0 because now we want to make this PAN a common business identifier, which means कि जैसे आपका आधार आपके सारे एक पर्सन के लिए जो भी बायोमेट्रिक्स हैं या उसकी जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उन सब के लिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन सब के लिए वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ प्रूफ बन जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका जो पैन कार्ड होगा ये भी आपका कॉमन आइडेंटिफायर फॉर बिजनेस बन जाएगा, विच इज बेसिकली कि जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए एक सिंपल पैन कार्ड के थ्रू ही आपके सारे ट्रांजैक्शंस आप फुलफिल कर दोगे। तो यहां पे इसलिए आप एक पैन 2.0 कार्ड कर रहे हो, तो यही इसके अंदर में मेन अपडेट है। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दोस्त जो आपका पैन पहले से क्रिएट कर चुके, जिनका पहले से पैन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस करके नया पैन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस पैन 2.0 इज कि ये जो पर्टिकुलर पैन कार्ड होगा अब ये कॉमन आइडेंटिफायर फॉर बिजनेस होगा, यानी रिमेंबर दिस, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, कंपनीज का भी पैन कार्ड बनाया जा सकता है, कोई भी आपकी इस टाइप से लीगल एंटिटी उसका भी पैन कार्ड बनाया जा सकता है। तो वो पर्टिकुलर जो पैन कार्ड होगा वो ही अब यहाँ पे आइडेंटिटी, उस बिजनेस की आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा, यानी पैन कार्ड को यूज करके आप यहाँ पे कोई भी बेनिफिट ले सकते हो। Let's move to the last news, legal issues in Sambhal. Sambhal is a place in UP and अभी इसमें एक devastating news आई है कि 4 people had died because of violence, because वहां के local court ने एक particular survey का order पास किया था which is regarding the शाही जामा मस्जिद जो आपकी सांभल में। Interestingly जो सांभल में आपकी शाही मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इट्स अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, विच मींस इसको प्रिजर्व करना, बिकॉज इसकी एज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर क्या है कि सो देयर वर सर्टेन पेटिशनर जो कोर्ट में जाते हैं और वो कोर्ट में क्लेम करते हैं कि जो पर्टिकुलर शाही जामा मस्जिद बनाई हुई है संभाल के अंदर में, इसके नीचे एक हिंदू टेम्पल है और इस हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके ही उसके ऊपर पे आपकी ये पर्टिकुलर शाही मस्जिद बनी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका कोर्ट है वो यहां पे एक सर्वे ऑर्डर करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑर्डर करता है टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, कि क्या एक्चुअल में उस सर्वे से ये पता करने के लिए क्या एक्चुअल में वहां पे हिंदू टेंपल था या नहीं था, ये आप यहां पे आइडेंटिफाई कर चुके। तो बेसिकली जो फाइल किया गया वो एक टाइटल सूट है, दे आर आस्किंग कि बिकॉज ये एक हिंदू टेंपल पे बना हुआ है, सो दिस पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू द हिंदूज, और ये पर्टिकुलर लैंड रिटर्न कर देनी चाहिए हिंदूज को, या फिर उनको सबको एक्सेस मिलना चाहिए, विच इज राइट नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली अ फ्यू पीपल। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है, क्या इस टाइप के जो ऑर्डर्स हैं क्या इनको एंटरटेन किया जा सकता है, इस टाइप के क्या पिटीशंस को एंटरटेन किया जा सकता है, या फिर ये जो पर्टिकुलर टाइप के केसेस होते हैं ये फाउल करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो ईयर 1991 के अंदर में आपकी पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट किया था। एंड व्हाट डज इट से? इट सिंपली सेज कि अगस्त 15, 1947
अगस्त 15, 1947 को जो किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप, जो भी कोई आपका मंदिर है, मस्जिद है, बुद्ध स्तूपा है, कुछ भी है, जो अगस्त 15, 1947 को उसका नेचर था, या आई शुड से द करेक्ट वर्ड वुड बी जो इसका रिलीजियस करेक्टर था। रिलीजियस करेक्टर सिंपली मींस कि अगर अगस्त 15, 1947 को कोई चीज मॉस्क है तो उसका रिलीजियस करेक्टर मॉस्क का है, अगर कोई टेंपल है तो 47 में अगस्त 15, 1947 को उसका रिलीजियस नेचर जो है वो करेक्टर जो है वो एक टेंपल का है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिंपली ये कहता है कि जो अगस्त 15, 1947 का किसी भी स्ट्रक्चर का जो रिलीजियस करेक्टर होगा उसको आप फ्यूचर डेट में चेंज नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द प्लेस नोन एज बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद एक एक्सेप्शन था, उसके अलावा जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बिकॉज वो पहले से केस था, उसके अलावा जो भी आपके केसेस हैं, जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, उनके रिलीजियस करेक्टर को आप फिर से एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर कोर्ट में ऐसा कोई भी केस आता है तो उस पर्टिकुलर केस को आप बार कर दोगे, मतलब उस टाइप की केसेस आप एंटरटेन ही नहीं करोगे। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, और दिस इज नॉट द ओनली केस, इसके अलावा आपके पास मथुरा का शाही ईदगाह का एग्जांपल है, और ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी के अंदर में, जो आपके ज्ञानवापी मॉस्क है आपका वाराणसी में, और शाही ईदगाह मॉस्क है आपका मथुरा में, वहां पर भी इस टाइप की जो पेटिशंस है उनको एंटरटेन किया गया। एंड व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज अराइजन? बिकॉज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, मई 22 का जजमेंट है, जिसके अंदर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऑब्जर्वेशन दी। दे सेड कि यहां पे जब मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का रिलीजियस करेक्टर जज कर रहा हूं, या मैं उसका एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट करा रहा हूं, और वो भी एक नॉन इंट्रूसिव मैनर, विच मींस कि इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा हूं, मैं सैटेलाइट के थ्रू या लिडार टेक्नोलॉजीज जो होती हैं आपकी लेजर वाली, उनके थ्रू मैं उसके अंदर में आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर के नीचे क्या है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यहां पे कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं रिलीजियस करेक्टर चेंज नहीं कर रहा हूं। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे पेटिशनर्स आर फाइलिंग केसेस इन द कोर्ट टू फाइंड आउट द रिलीजियस करेक्टर ऑफ अ प्लेस। दे आर जस्ट आस्किंग कि अगस्त 15, 1947 को इसका रिलीजियस करेक्टर क्या था, उसके लिए वी वांट अ सर्वे टू बी डन। तो इस पर्टिकुलर केस से क्या हुआ है, आपका एक कैन ऑफ वॉर्म्स ओपन हो चुका है, बिकॉज अब यहां पे अब इस टाइप के जो प्लेसेस जिनका रिलीजियस करेक्टर अबाउट वाज इज ऑलरेडी कंक्लूडेड टू बी अ मॉस्क और टेंपल और लेट्स से अ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, अब यहां पे हर किसी को क्वेश्चन किया जा सकता है। एंड व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग? बिकॉज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आपके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है पिछले 4 डेकेड से, और ऐसी 4 पेटिशंस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पिछले 4 डेकेड से, 40 साल से यहां पे बोला हुआ है कि आप अपना यहां पे एफिडेविट फाइल करिए। नॉट 40 साल से, 10-15 साल से आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है कि आप यहां पे अपना एफिडेविट फाइल करके बताइए कि आपका इस पर्टिकुलर पेटिशंस के ऊपर पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या इसको हमें कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। और बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली फाइनल नहीं करा है, इस वजह से इस टाइप के जो पेटिशंस हैं उसको कई केसेस के अंदर में आपके जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो एंटरटेन कर लेते हैं। देयर माइट बी पॉलिटिकल रीजंस फॉर इट, देयर माइट बी सम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रीजन आल्सो इट बिहाइंड एक्सेप्टिंग सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बट दिस इज द केस जो यहां पे हो रहा है। तो यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। ज्ञानवापी मॉस्क में, मथुरा की शाही ईदगाह मॉस्क के अंदर में भी ये पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है आपका क्वेश्चन में आया था। मोर ओवर दिस ईयर अयोध्या का राम टेंपल जो है वो इनॉग्रेट हुआ था, वहां पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो स्टूडेंट, विथ दिस वी आर डन फॉर द डे। ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस थी। इन केस आपके कुछ डाउट्स, फीडबैक्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर में बता सकते हैं, हम ट्राई करते हैं सबको ही इनकॉर्पोरेट करना। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।